توبہ آ گئی ہے؟ اور بھی آئے ہوئے ہیں ناغا کرنے والے بعض ہیں. توبہ تو باقاعدہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. نوٹس لیتی ہو؟ نوٹس پھر جا کے گھر دیکھتی بھی ہو کہ نہیں؟ اچھا، یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی نوٹس رکھتے ہیں وہ نوٹس لیا کریں اور نوٹس گھر جا کر دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ دماغ میں اسی طرح ذہن نشین بھی تھی بات جیسا نوٹس میں ہے کہ نہیں. پھر اس کو کراس چیک کرنا چاہیے. پہلے تو آپ دواؤں سے مریضوں کی طرف جاتی ہیں یا چونکہ طوبہ میں مخاطب ہے اس لیے میں پہلے ذہن میں وہی آیا ہے، لیکن آپ سب مراد ہیں. ذہن چونکہ دواؤں سے مرض کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہ ایک رستہ ہے. واپسی ضروری نہیں ویسے ہی اسی طرح آسان ہو جائے. واپسی پہ اور مسائل اٹھتے ہیں ہمیشہ. آپ ایک رستہ کا اندازہ کر کے چلے جائیں کسی طرف، واپسی پہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں آدمی اسی رستے پر واپس بھی آ جائے. یعنی جنگلوں کی بات میں کر رہا ہوں. تو علامتیں ایسی رکھنی پڑتی ہیں جن سے انسان واپس آ سکے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوا یاد ہونے کے بعد پھر مرض کو پیش نظر رکھیں، صرف جو مریض آپ سے بات کرے گا. پھر دیکھیں آپ کو کن کن رستوں پر دماغ کن کن دواؤں تک پہنچاتا ہے، اور پھر آیا آپ فرق کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ کام بہت زیادہ مشکل اور ذہن کو الجھانے والا ہے، سوائے اس کے کہ آپ لینڈ مارکس مقرر کر دیں. اس لیے پڑھنے کے بعد جب نوٹس دیکھتے ہیں تو لینڈ مارکس یعنی نشان لگانا جگہ جگہ ذہنی طور پر، تاکہ وہ نشان آپ کو یقیناً اگلے نشان کی طرف لے جائیں. لینڈ مارکس مقرر کرتے وقت 4-5 شاخوں یا زیادہ شاخوں میں آپ کو لینڈ مارکس مقرر کرنے پڑتے ہیں. مثلا نزلہ ہے، میں نے کہا کرونک نزلہ اور زینہ، یہ کوئی 15-20-25 دواؤں میں آ چکا ہے اب تک. اب اگر آپ نے اسی طرح اس کو بے ترتیبہ رہنے دیا تو جب کوئی مریض آ کے کہتا مجھے نزلہ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ اس نزلے میں کون سی دوا تک پہنچوں. اس کے لیے انالیٹیکل سسٹم ضروری ہے. کیمسٹری میں جب کسی کیمیکلز کو دیتے ہیں کہ اس کا انالیسس کرو اور معلوم کرو کہ اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، تو بے ترتیب طریق پر آپ کو تمام ایلیمنٹس کی علامتیں معلوم ہوں آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک معین رستہ ہے، پہلے یہ پھر یہ ٹیسٹ پھر یہ ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ آدھی دواؤں کو ایک طرف کر دے گا، آدھی دواؤں کو یا اس سے ملتا جلتا ایک طرف کر دے گا. باقی آدھی میں تفریق کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے، اور اس طرح قدم بقدم آخر پر ایک کیمیکل باقی رہ جاتی ہے. اس کا آخری ٹیسٹ کر لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہی چیز تھی. تو اس سے بھی مشکل یہ معاملہ ہے. وہاں تو جو باقاعدہ سسٹمز ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں. ویسے بھی لڑکے جو یاد ایک دفعہ کر لیتے تھے ان کو مشکل نہیں پڑتی تھی، مگر مریضوں کے معاملہ میں فرق یہ ہے کہ ہر مریض اپنی ذات میں ایک الگ جہان ہے، اور وہ ہر بات وہ بات نہیں کرتا جو کاپی میں موجود ہو، یا کاپی بک جس کو کہتے ہیں آپ کے نوٹ بک میں اسی طرح موجود ہو. وہ کوئی بات مشرق کی کرے گا، کوئی مغرب کی کرے گا، کوئی بات آپ کو یاد دلائے گی آرسنک، کوئی سلفر، کوئی اسٹینم. تو وہاں جا کر آپ ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں گے جہاں سب راستے کنفیوز ہو گئے، کچھ نہیں پتہ چلتا. تو اس کی اپنی مدد کرنے کی خاطر آپ جب نوٹس پڑھتے ہیں واپس جا کے تو یہ سوچیں کہ میں کسی مریض کو جو یہ علامتیں مجھے بتاتا ہے
किस सूरत में इस दवा तक पहुंचा सकता हूं और कैसे पहुंचा सकता हूं? इस दवा की कौन सी ऐसी खास बात है जो बाकी दवाओं से इसको अलग कर रही है, और मरीज जब मुझे नज़ला कहता है तो बजाय इसके कि 50 दवाओं में मेरा सर घुमाता फिरूं, इस दवा तक फौरन पहुंच जाऊं। कोई ऐसा लैंडमार्क वहां बांध देना चाहिए। और ये जो लैंडमार्क सिस्टम है, ये तो अल्लाह ताला ने जानवरों को भी अता किया हुआ है। जो सफर करते हैं जानवर बहुत दूर दूर तक अपनी जगहों से, मसलन कीड़ियां, उन्होंने भी लैंडमार्क बनाए होते हैं। चुनांचे कीड़ी के ऊपर सहरा में तहकीक हुई है, रेत पे तो कोई लैंडमार्क दिखाई नहीं देता कि कीड़ी अपने बिल से बहुत दूर चली जाती है, और इंसान भी अगर इस तरह जाए तो वो वहां वापस नहीं पहुंच सकता, लेकिन कीड़ी पहुंच जाती है, इसलिए कि उसने जगह जगह अपने बारीक छोटे छोटे लैंडमार्क छोड़े हुए होते हैं। वो एक की तरफ वापस जाती है, फिर दूसरे की तरफ, तीसरे की तरफ, इस तरह वहां पहुंच जाती है। बाज जानवर हैं जो अपना लुआब या गंध दरख्तों पर, झाड़ियों पर मलते जाते हैं। एक ऐसा जानवर है जो 30-30 मील दूर अपने मस्कन से निकल जाता है, और महज अपनी बदबू के जरिए, जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है लोगों के लिए, वो लंबे फासले तय करके उस बदबू तक, वहां तक निशान पे पहुंचता है। तो खुदा ताला ने कानून कुदरत में जो लैंडमार्क सिस्टम मुकर्रर किया हुआ है, उसको, उसकी इमिटेशन करें, उसकी नकल उतारें, जहन में मुख्तलिफ जगहों पे कुछ धागे बांधें कि यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, और रोज़मर्रा जब अपना ट्रायल करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आसान काम नहीं। लेकिन एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर बजाय इसके कि आप लंबी शनाख्त करें, पहले इसका टेस्ट उसका टेस्ट, फौरन दिमाग में, जहन में वो दवा उभरती है बगैर तरद्दुद के, लंबे तजर्बे से और जहनी से, एक्सरसाइज यानी वर्जिश से। फिर ये देखना नहीं पड़ता कि बाज़ा पूछना भी नहीं पड़ता मरीज से, उसके चेहरे, उसके चेहरे की अलामतें, उसकी अदाएं फौरन आपको किसी दवा की तरफ ले जाते हैं। फिर आप बेशक पूछकर तसल्ली कर लें, अक्सर वही दवा निकलती है जो जहन में उभरती है। तो इस पहलू से लंबी तरबियत की ज़रूरत है। शुरू में आपको घबराना नहीं चाहिए। करीबन 1 साल मेहनत करें, और 1 साल की मेहनत आपका आइंदा कई साल का वक्त बचाएगी। फिर हर रोज़ हर वक्त रेपिटेसी देखने की जो आदत है मुसीबत, उससे अक्सर निजात मिल जाती है, कभी कभी देखना पड़ता है। तो इस पहलू से जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, इनके नोट्स पे शक लें, लेकिन नोट्स से पहले अच्छी तरह सुन लिया करें, जहन नशीन यहाँ भी करें, वापस जाके नोट्स के हवाले से फिर जहन नशीन करें, और इंशाल्लाह इन नोट्स को हम बाद में किसी वक्त शाया भी कर देंगे ताकि सहूलत हो जाए। किससे? भट्टी साहब की कैसे? कौन से भट्टी? नासिर भट्टी। उनका बेटा बीमार है, 3 दिनों से उनसे बुखार हुआ है। बुखार है? आजकल जो एपिडेमिक फीवर है, 102 बुखार है, 3 दिनों से बुखार टूट नहीं रहा, मुसलसल है। और आंखें भी बंद करके पड़ा हुआ है, प्यास भी नहीं लग रही इसे। ये जो सूरत हाल है, ये तो बैप्टीशिया की इलामत है ज्यादा। अमूमी तस्वीर जो आप खींच रहे हैं, ये बैप्टीशिया की है। अगर वो बेचैनी भी जाहिर नहीं कर रहा और डूब रहा है, ऐसे बुखार जो टाइफाइड की तरह के हों, और उनमें मरीज को अपनी तकलीफ और दर्द का नुमाया एहसास ना हो, अगर ऐसा मरीज गले की इन्फेक्शन से भी बीमार है, तो ये भी टिपिकल इसकी इलामत है बैप्टीशिया की। बैप्टीशिया में गला बाज़ दफ़ा गल सड़ रहा होता है और मरीज को पता ही नहीं, क्योंकि दर्द नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं कि बैप्टीशिया के असहाल मौजूद हों और टाइफाइड ही हो। आजकल चूँकि नज़लाती बीमारियां हैं, उनमें बैप्टीशिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो क्रॉनिक बुखार हैं, ऐसे जिस तरह के आपने बयान किए, जो क्रॉनिक हो जाएं,
ان میں زیادہ تر 3 دوائیں ذہن میں ابھرتی ہیں. لمبے چل رہے ہیں، ہر روز ہو رہے ہیں، یا تھوڑا سا ڈوبتے ہیں پھر اوپر آتے ہیں. کون کون سی 3 دوائیں خاص طور پر آپ کے ذہن میں ابھریں گی اس سے؟ ہیں؟ ٹھیک ہے، آرسنک تو سب کو یاد ہے. دیکھیں اس طرح میں کہہ رہا تھا نا، لینڈ مارک کسا ہوا آپ نے. نہیں، تائروجینم انفیکشن کے بخاروں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جب معلوم ہو یہ انفیکشن ہے، ایک کرونک بخار چلا آ رہا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. 3 ایسے اگر ان میں کمزوری ہو، بخاروں کے ساتھ کمزوری نمایاں ہو، تو 3 دوائیں ہیں جو چوٹی کی ہیں، جو ذہن میں ابھرنی چاہیے. ایک آرسنک، ایک میوریٹک ایسڈ اور ایک ایسڈ فاس. میوریٹک ایسڈ جو نمک کا تیزاب ہے، فاسفورک ایسڈ جو فاسفورس کا تیزاب ہے، اور آرسنک ہی ہے، جانتے ہیں آپ. ان تینوں میں لمبے پرانے بخار پائے جاتے ہیں، مگر ان میں لطف کی بات یہ ہے کہ تینوں بالکل واضح طور پر پہچانے جاتے ہیں. آرسنک اپنی بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. فاسفورک ایسڈ اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ دماغ میں بہت زیادہ اندھیرے سے پائے جاتے ہیں، کمزوری، نقاہت، فیگز، اور دماغی علامتیں بہت زیادہ ہیں، جس کے ساتھ جسمانی کمزوری دراصل دماغی علامتوں کے بعد ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اگر بخار کے ساتھ آغاز میں صرف اتنا پوچھ لیں آپ کہ ذہن پر کچھ اثر تھا، دباؤ تھا، فیگز تھے، بات کرنے میں مریض کچھ الجھتا تھا یا بھولتا تھا، اگر یہ علامتیں ہوں تو ایسڈ فاس میوریٹک ایسڈ کی بجائے اصل دوا ہے. اور اگر جسم کمزور ہو رہا ہے اور دماغ صاف ستھرا ہے، بہت آخری منزل پہ جا کے متاثر ہوتا ہے، تو پھر میوریٹک ایسڈ. تو ایسے بخار جن کی تمیز ممکن ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں. جن میں مریض سے یہ کہتا ہے جی بخار ہے، اس کو 5 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، بخار اتر ہی نہیں رہا، اس صورت میں یہ وہ 3 دوائیں ہیں جو بغیر کسی اور لیبل کے، صرف بخار کے لیبل سے ذہن میں آنی چاہیے، اور آگے ان کی شناخت بڑی آسان ہے. اگر اس طریق پر مریض کی شناخت نہ ہو تو پھر زیادہ گہرا اترنا پڑتا ہے کہ بخار کا مرکز کیا ہے، اور اس کی شناخت سے پھر دوائیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر مرکز گردہ ہو، پیشاب کی علامتیں ہوں، یا یورینری ٹریکٹ جہاں سے پیشاب گزرتا ہے وہ نالی میں کہیں بھی انفیکشن وغیرہ ہو، تو اس سے تعلق والی خاص دوائیں ہیں. ان میں یہ بھی ہو سکتی ہیں، آرسنک، فاسفورک ایسڈ وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ان کی علامتیں آپ ایک طرف کر بیٹھے ہیں تو پھر ان کو نظر انداز کر کے دوسری باتیں ڈھونڈیں. پھر گلے کے بخار ہیں، ان میں بہت زیادہ اگر سوجا ہوا گلینڈ ہو، اس میں شدت پائی جائے، سختی پائی جائے، تو فائٹولاکا بھی ہو سکتی ہے، اس میں کاسٹیکم بھی ہو سکتی ہے. بیلاڈونا خود بہت اچھی دوا ہے. سلفر بھی گلے کے بخاروں میں مفید ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو بتائی ہے میں نے بیپٹیشیا، اگر گلے کے بخار میں کوئی تکلیف نہ ہو، درد محسوس نہ ہو، اور آپ منہ کھول کے اس کھلوا کے دیکھیں چمچے سے نیچے زبان کر کے، تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ گل سڑ گیا ہے اور مریض کو درد نہیں ہو رہی یا درد نہیں ہو رہا. اس صورت میں بیپٹیشیا چوٹی کی دوا ہے. بیپٹیشیا کی جب علامتیں ملیں، میں نے اس سے زیادہ مؤثر اور پورے کیس پر قبضہ کرنے والی دوائی کم دیکھی ہے. اور صرف بیپٹیشیا دیں، کسی مکس کرنے کی ضرورت نہیں. اکیلی ہی یہ فوراً مریض کو سنبھالتی، اس کے نئی جان ڈالتی، اور دیکھتے دیکھتے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹائیفائڈ کے گئے گزرے کیسز میں جہاں سخت بدبودار اسہال جو بہت بڑے نہ ہوں مگر تھوڑے درمیانے اور انتہائی متعفن، بیپٹیشیا چوٹی کی دوا ہے، مگر اس کے ساتھ
पायरोजियम और टाइफाइडिनम, हर टाइफाइड में मैं लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर देता हूँ। जैसे कैनन फायर होता है ना जंग में, सिपाही फतूहात करता है टेरिटोरियल, लेकिन पीछे से कैनन फायर हो रहा होता है। इस तरह बाज बुखारों में कैनन फायर की जरूरत पड़ती है। ओवरऑल कवर देते हैं और फिर छोटी 30 की दवाइयाँ उसके साय में बहुत तेजी से आगे बढ़कर अपना असर दिखाती हैं। तो ये बुखार के सिलसिले में मिसाल दे रहा हूँ। इन्फेक्शन का मरकज जिगर हो सकता है, साफ पहचाना जाता है। फिर इन्फेक्शन अंतड़ियों में हो सकती है, रहम में हो सकती है। तो जब आप मरीज से कुछ और अलामतें पूछें तो जल्दी जल्दी ये कोशिश करें कि उसका मरकज मालूम कर लें। मरकज के ताल्लुक की दवाइयाँ फिर बिल्कुल निथर कर अलग हो जाती हैं। फिर 50 या 100 दवाओं में से नहीं, बल्कि चंद गिनती की दवाओं में से आपको शनाख्त करनी होगी। फरमाइए। बताया था कि कमर दर्द से 3 दिन पहले वो खेलता रहा है और कमर दर्द से शुरू हुआ था। कमर दर्द हुई पहले, फिर अच्छा। बुखार चढ़ गया। ठीक है, कमर दर्द पहले हुई है। जी। कमर दर्द बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि उसको गुर्दे में इन्फेक्शन हो गई हो और सर्दी लग गई हो। उसमें भी अगर बैप्टीशिया की अलामत है तो बैप्टीशिया भी ही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन इस यानी गुर्दे के इम्कान को मद्देनजर रखते हुए आप उनसे पूछें ना। फिर और अचानक खेलते हुए कमर दर्द होना सर्दी लगने की अलामत है आजकल के मौसम में, और सर्दी जब वेट हो तो उसके लिए कुछ और दवाएं सामने आती हैं। वेट सर्दी लगने में मरकरी भी जहन में आती है और फाइटोलाका उसकी एक चोटी की दवा है। तो ये मैं वापसी का रास्ता बता रहा हूं आपको, दवाओं से मरज की तरफ कैसे पहुंचना है। फिर मजीद उनसे सवाल जवाब करें और जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये इससे मिलता जुलता मामला है तो वही दवाई दें फिर अल्लाह के फजल के साथ। ठीक है, अगर कुछ ना पता चले तो बैप्टीशिया दे दें। अगर मरीज शोर में चाह रहा बैठा हुआ आराम से लेटा हुआ है, प्रोस्टेशन की वो अलामतें नहीं जो यूरेटिक एसिड या एसिड फास की तरफ ले जाती हैं, तो फिर बेहतर यही है कि उसको बैप्टीशिया बिला ताखीर शुरू करा दें। और उसके बाद अगर मिक्स्ड सा हो मामला, कुछ यूट्रस का शुबा हो, कुछ गुर्दों का शुबा हो, कुछ यूरिथ्रा का शुबा हो और अलामतें इन्फेक्शन की हों, बहरहाल गले का भी हो मगर वाज़े केस ना हो, तो ऐसी सूरत में चूंकि बाज़ दफ़ा वक्त नहीं होता, एक छट्टा बनाया हुआ है मैंने, वो दे देता हूँ। अक्सर बच्चों वगैरह में सहूलत हो जाती है। बच्चों में इसलिए कि बच्चे अलामतें नहीं बताते, तो ये ज़्यादातर मैं बच्चों ही में इस्तेमाल करता हूँ। बड़ों के लिए पूछ कर कोशिश यही करता हूँ कि अकेली दवा मिल जाए, लेकिन अगर वहाँ भी ऐसा मामला हो तो फिर वो छट्टा देना चाहिए। वो है फेरमफास, कालीमियो, सिलीशिया और कैलकेरिया फ्लोर। बाज़ दफ़ा कैलकेरिया फ्लोर की बजाय कैलकेरिया फॉस, ये बहुत बारीक बाज़ दफ़ा फ़र्क करने पड़ते हैं, समझिए। ये जो है ये अक्सर काम आ जाते हैं। हाँ, बाज़ दफ़ा मैकफॉस डालनी पड़ती है अगर स्पेज़म और दर्द ऐसी हो जैसे एकदम जफा पड़ता है और उस दर्द को गर्मी से आराम मिलता हो कुछ, तो ऐसी सूरत में मैग्नीशिया फॉस चोटी की दवा है। जिनमें मैं बताऊं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब माँ बाप कहते हैं जी सारी रात नहीं सोता, और सोता फिर चीख मार के उठ जाता है, दिन को ठीक ठाक होता है। उसकी वजह यह है कि जब बच्चा सुकून से लेट जाता है तो उसके पेट की हवा बाज़ जगह गुच्छे डाल देती है और उस तनाव की वजह से उसको घबराहट होती है। वो ऐसी सूरत में मैकफास की अगर वो बड़ा बच्चा है निस्बतन तो 1-2 टिक्कियाँ मुंह में डाल दें, वरना बेहतरीन तरीका यह है कि थोड़े से गर्म पानी में टिक्कियाँ घोल दें और कतरा कतरा बच्चे के मुंह में टपकाएं। अक्सर माँ बाप ये बताते हैं कि एक ही खुराक दी, उसके बाद बच्चा आराम से सो गया।
तो ये नींद की दवा नहीं है, मगर स्पेजम को खोलने वाली दवा है। आजकल बच्चे तुम भी आ जाओ इधर जरा। हाँ, क्या कर रहे हो तुम छुपे हुए पीछे बैठे? मैंने भी देखा तुम्हें, इधर आओ, यहाँ के बैठो। तो रात नींद की घुटनों में तुम बहुत अच्छा चलते हो। अगर बर्फ पर घुटनों के बल जा चलना पड़े तो क्या करोगे उस तरफ जाके? अगर ग्लेशियर के ऊपर घुटनों के बल जाना पड़े तो क्या होगा? हैं? फ्रीज हो जाओगे। और क्या हो सकता है? अगर पार उतर जाओ तुम तो क्या देखोगे? If you have to walk on your knees like this, as you did now, what do you expect to find on the other end? At the other end, why should you go through the trouble of walking on your knees all through across the glaciers? What should make you so deeply interested in this, to find out something across? Does it ring any bell? I think it does in your mother's mind. Ask her. Ask her. Ask her. उर्दू या अंग्रेजी किस क्या बोलते हो मुझे? हाँ पूछो उर्दू से। को क्या मैं क्यों ऐसी बात करूंगा आकर? पूछो। पूछो जोर से। तुम्हें बताओ मुझे ये क्या मसला है? क्या मसला है? बताएं। तो राज की बात हो रहा है, शायद दुनिया में इमाम महदी का डंका बज रहा होगा, एक एक हजार के बताऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम सुनो कि इमाम महदी आ गया है तो फिर अगर ग्लेशियर्स के क्रॉस भी इस तरह चलकर जाना पड़े जैसे तुम चल के यहां तक आए हो, तो गो और वहां पहुंचकर इमाम महदी को देखो तो मेरा सलाम कहो उसको और उसके हाथ पे बैत करो। समझो? ये मतलब है इसका। अगर तुम इस नेक नीयत से जाओगे तो फ्रीज नहीं होगे। अच्छा, ये आप चलें फिर। मैं आपको कौन सा एसिड पढ़ा रहा था? एसिड पढ़ा रहा था जी? म्यूरेटिक एसिड पढ़ा चुका हूँ। ट्यूबरकुलिनम लास्ट पढ़ाए थे आप हुजूर, और रिंग वर्म के जिक्र मैं बताता हूँ जी। रिंग वर्म तक पहुंच गया था जी। उसके बाद सोते में झटके लास्ट। ठीक है मैं म्यूरेटिक शुरू किया। ट्यूबरकुलिन के बाद म्यूरेटिक शुरू किया। क्या? म्यूरेटिक शुरू किया था। म्यूरेटिक जो था वही तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। यही। और डॉक्टर साहब की जो याददाश्त है उसको चलाने की कोशिश तो ना करें। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमाया है। कौन कौन सी अलामतें बहस कर रहे थे हम? आखिर में हुजूर ये जो ट्यूबरकुलिन के सिलसिले में जो आप फरमा रहे थे हुजूर, सोते में झटके जो थे, इंटरमिटेंट फीवर की बात भी की थी मैंने। हाँ जी। उसके बाद ये जो म्यूरेटिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक की डिफरेंशियल वो जो ज़िम्मन बीच में आती रहती हैं बातें, जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जी सर। कि ट्यूबरकुलिन में मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रोमिनेंट uses of this remedy, the prominent use of this remedy is in intermittent fevers. वो नहीं हाँ? नहीं हुजूर। मैं तो जनरल रिलैक्सेशन, बस ठीक है। menses, and then hard, dry, shaking cough, ringworm. सबसे पहले तो इस दवा को, जिसको मैं कहता हूँ लॉजिस्टिक कवर के तौर पर इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। एक्यूट केसेस जो फौरी बीमारियां पैदा होती हैं उनसे बहुत ज्यादा इसका फायदा लंबी गहरी बीमारियों के असर को तोड़ने के लिए और रोजमर्रा की वो दवाएं जो जहन में उभरती हैं उनके असर को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वरना बसा औकात अगर जिस्म के अंदर कोई गहरी बीमारी का असर पाया जाता है जो बाज़ दफ़ा नस्लन बाद नस्लन चलती है, तो रोजमर्रा की आपकी सही तशखीस भी काम नहीं कर रही होती, या करती है तो कुछ देर के बाद काम करना बंद कर देती है और बार बार फिर आपको कुछ और ढूंढ के देना पड़ता है, फिर कभी दोबारा वही चीज फिर काम शुरू कर देती है। तो इसका मतलब यह है कि अंदर कुछ चीज अटकी हुई है।
اور ان اٹکی ہوئی چیزوں میں سل کے اثرات بھی بہت نمایاں ہیں، اور یہ روزمرہ کی بات ہے۔ ہمارے ممالک میں تو خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ لمبا عرصہ غربت کا اور مکانوں کے ان ہائیجینک یعنی صحت مند اصولوں کے خلاف بنے ہوئے ہونے کے نتیجے میں بعض لاہور کے علاقے ہیں جہاں علاقے سل کے مریض ہیں، اگر سل نہ بھی ہو ان کو تو ان کی علامتیں سل والی نسل بعد نسل چلتی ہیں، چہرے زرد، پھیکے، بے رنگ، اور لنگس کی تکالیف، ویسے کھانسیاں وغیرہ، دمے، سل کے بعد دمہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ دمے کو عموماً ڈاکٹر صرف اس سے مانتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر زیادہ تر اینٹی سائیکوٹک دواؤں سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جس کو گونوریا یا سوزاک کہتے ہیں، اس کے لمبے اثرات خیر وہ 100 سال 200 سال پہلے کے ہوں، وہ کہتے ہیں ان کو مٹاؤ گے تو دمہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن میرے نزدیک ٹوبرکلینم کم از کم برابر کا حقدار ہے اس میں، اور سلی امراض دمبی امراض میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ جو انٹرمیٹنٹ فیورز ہیں یعنی ملیریا وغیرہ، یہ سلی امراض میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غالباً ایسی صورت میں ڈاکٹر کینٹ نے یہ مشورہ دیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فیور میں اس کو استعمال نہ بھولو۔ یہ وہ ایسی صورت ہے جو عام انٹرمیٹنٹ فیور میں ٹوبرکلوم کام نہیں آتا، مگر میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ سندھ میں تھرپارکر کے علاقے میں کثرت کے ساتھ نمونیا اور سل اور ملیریا بخار یہ پائے جاتے ہیں، اور آغاز اس طرح ہوتی ہے، ایک چکر ہے، آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ملیریا ان کو ہوتا ہے اور گرمی بڑی سخت لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، دن گرم اور راتیں بعض دفعہ صحرا میں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سندھ کے اور بھی بہت سے علاقوں میں یہ اسی طرح کا بیماریوں کا چکر پایا جاتا ہے۔ وہ دن کو ملیریا، وہاں مچھر بہت ہے، تھرپارکر میں بھی اگرچہ پانی کم ہے لیکن بعض جگہ جہاں پانی ہے وہاں پھر مچھر اکٹھا ہو کر بڑا زہریلا ہو جاتا ہے، تو ساری رات مچھر نہیں سونے دیتا۔ ایسی جگہوں پہ ملیریا لازم ہے کہ بہت زیادہ ہوگا اگر ملیریل مچھر ہو، تو رات کو جب وہ کپڑے اتار دیتے ہیں گرمی سے تو ماحول بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اچانک سردی لگنے سے ایسے مریضوں کو لنگز کی تکلیف، یعنی خاص طور پر نمونیا بہت پایا جاتا ہے وہاں۔ نمونیا جو پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور پھر اوپر سے غربت، خوراک کی کمی، تو سل کو دعوت دینے والی بات ہے، تو ایسے مریض پھر سل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریض ملیریا کے علاج کی خاطر نہیں بلکہ دراصل سلی اثرات کو مٹانے کے لیے ٹوبرکلینم کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آپ ٹوبرکلینم نہ دیں تو عام ملیریا کی دوائیں کام نہیں کرتی، ٹوبرکلینم دیں تو چونکہ اس کا ملیریل بیک گراؤنڈ سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ ٹوبرکلینم خود ہی جب سل کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے تو ملیریا ساتھ ہی بیچ میں پیسا جاتا ہے۔ تو یہ ان ملیریا کے معاملات میں، کیسز میں ٹوبرکلینم مفید بلکہ ضروری ہے، جہاں جو نقشہ میں نے کھینچا ہے ملیریا کا پھیپھڑوں سے کی تکلیفوں سے تعلق اور پھیپھڑوں کا پھر سل میں تبدیل ہو جانا، سمجھ گئے؟ ایڈینوائڈس بتا دیا تھا میں نے، آپ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے۔ مریض دوسری جگہ ہاں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں جگہ تبدیل کرنے کی تمنا پائی جاتی ہے، جی فرما دیا تھا آپ نے، کچھ
शेर भी सुनाए थे, कलकेरिया फ्लास भी बताया था, याद है? शेर पर डॉक्टर साहब इस तरह माजरत से हंसे हैं कि मुझसे न पूछना, किसी और से बेशक पूछ लो। इनके लिए होम्योपैथी खत्म करने काफी है, शेर भी साथ शुरू हो जाए तो बड़ा जुल्म होगा। बड़ा अच्छा हो रहा है लगभग से, अच्छी हजम हो रही है लगभग से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर शेरों का मैं कह रहा अभी इतनी साथ नहीं, कुछ वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता। पीरियोडिकल सिक हेडेक्स में ट्यूबरकुलिनम मुफीद बताई जाती है, मगर सिक हेडेक्स और पीरियोडिकल होना ये ऐसी आम बात है कि ये कहकर ये ख्याल कर लेना कि आप ट्यूबरकुलिन तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं मैं किस तरह निशान बांधता हूं जगहों पे। मलेरिया में हेडेक्स जरूर होती हैं और मतली वाली हेडेक्स होती हैं, तो वो सिली इलामतों वाला मरीज जिसमें मलेरिया ने गहरे असर छोड़े हुए हों, उसकी सिक हेडेक में ये काम आ सकती है, लेकिन हर सिक हेडेक में नहीं। हर ऐसी सर दर्द में जिसमें मतली भी होती है और दौरे पड़ते हैं, उसमें बहुत सी और दवाएं हैं, लेकिन ट्यूबरकुलिनम का ख्याल आपको ऐसे मरीज के पस मंजर में आना चाहिए जो मलेरियाई इलाके का हो, जहां इस तरह मौसम बदलते हों कि दिन की गर्मी रात की सर्दी में बदल जाती है, जहां लंग्स पर गहरे असर छोड़ देता है मलेरिया भी और ये फेफड़े की कमजोरियां भी। ऐसे मरीज बाज़ दफा ठीक हैं, बुखार नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नजर नहीं आती, मगर मलेरिया की दबी हुई इलामतें उनके सर दर्द की शक्ल में, दौरेदार वैसे दर्द जैसे मलेरिया हो रहा हो। ऐसे मरीजों को जब आप ट्यूबरकुलिनम से ठीक करने की कोशिश करें या गहरी मलेरिया वाली दवाओं से, मसलन नेट्रम्योर है, तो उस सूरत में मुतनब्बे रहें कि बाज़ दफा मलेरिया बाहर आ जाता है, फिर उसका इलाज मलेरिया के इलाज होना चाहिए। जब इसके सिर दर्द दूर हो और बुखार हो तो याद रखें बसा औकात अक्सर सूरतों में ये दबा हुआ मलेरिया था, और दबा हुआ मलेरिया एक ऐसी चीज है जो जिगर में घर करता है। इसके जरासीम जब खून में निकलते हैं तो अपने वायरस के काम करने के बाद जब जिस्म का रद्द-ए-अमल शुरू होता है, उस वक्त ये दौड़कर फिर जिगर में मुख्तलिफ इन्होंने पनाहगाहें बनाई होती हैं, वहां जाके बैठ रहते हैं, फिर तिल्ली में भी जाके बैठना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि क्रॉनिक मलेरिया में जिगर और तिल्ली बहुत फूल जाते हैं। बाज़ बच्चे का पेट इतना तना हुआ होता है, यहां भी नहीं हाथ लगाया जाता, यहां भी हाथ नहीं लगाया जाता, दोनों जगह तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में मलेरिया ही जिम्मेदार है, और जब आप दबी हुई इलामतों का इलाज करें तो दबा हुआ बुखार बाहर आना कोई ताज्जुब अंगेज बात नहीं। इसका मतलब है जिगर की गहराई तक दवाई ने असर किया है और वहां उन जरासीम में बेचैनी पैदा हुई है, उनके घरौंदे टूटे हैं, वो फिर बाहर आते हैं। अब बेहतरीन मौका है उनको खत्म करने का, लेकिन इलामतों के मुताबिक फिर उसका इलाज होना चाहिए। sore, bruised feeling all over the body, aching of bones, ये तो दोनों इलामतें सिल और मलेरिया की मुश्तरक इलामतें हैं, जिसमें दर्दें, बुखार की कैफियत, बेजारी, कैल्शियम के साथ कहते हैं ट्यूबरकुलिनम इंटरचेंजेबल है, और हाइड्रोकेफलस में ट्यूबरकुलिनम अच्छा असर दिखाती है। ये वो चीज है जो मैं पहले भी अमलन तजर्बे में ला चुका हूं कि बाज़ दफा सिर बहुत बड़ा हुआ हो तो उसके मरीज आम दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं देते, उसका रद्द-ए-अमल नहीं दिखाते। ऐसी सूरत में बाज़ दफा गहरी रोग कोई होती है, और ट्यूबरकुलोसिस अक्सर वो बुनियादी रोग बनता है, और जिनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, उनके खून में आ चुका हो, उनके बच्चों में
सर का एकदम फूल जाना, बड़ा हो जाना, और वो जिसको क्या कहते हैं उर्दू में उस बीमारी को, हाइड्रोकेफेलस कहते हैं अंग्रेजी में, सिर बहुत बड़ा होके वो तरबूज का तरबूज बन के लटक जाता है, बच्चा कमजोर होता जाता है, आंखें बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। इस बीमारी का नाम उर्दू का तो मुझे याद नहीं, मगर इसका इलाज ढूंढने में अगर आम दवाएं काम ना करें तो ट्यूबरकुलिनम को याद रखें। ट्यूबरकुलिनम ऊंची ताकत में ऐसे बच्चे में वो रद्द-ए-अमल दोबारा पैदा कर देती है जो आम दवाओं को दिखाना चाहिए मगर वो नहीं दिखा सकती। ये मुझे ये जो दिया गया है, क्या नजर आया था मेरे नाक के गिर्द इर्द गिर्द, जो ये मुझे पहुंचाया गया, क्या पैगाम दे रहा है ये? ठीक हो गया सर, थोड़ा सा था कुछ है? ठीक, अच्छा, अब ठीक है। ठीक है। बाधा वो टिश्यू से साफ करते हैं तो कुछ चीजें लगी रह जाती है। बहुत बारीक लतीफ पैगाम दिया था किसी ने कि ख्याल करो जरा, जिस तरह वो सुना हुआ ना आपने, वो जो बुलबुल बर शाख गुल निहादे, सुना हुआ? नहीं। एक बादशाह खाना खा रहा था तो उसके दाढ़ी में एक चावल गिर के फंस गया। तो अब वो जो बाकी जो हवारी थे वो तो बहुत बेशैम कि किस तरह बताएं, बादशाह को बेइज्जती होगी। तो एक आला ज़ौक़ का शायर भी बैठा हुआ था, उसने कहा बुलबुल बर शाख गुल निहादे, कि बुलबुल शाख गुल पर बैठी हुई है। तो बादशाह फौरन समझ गया, उसने किया तो ठीक हो गया। तो ये जब लतीफ़ा किसी ने सुना तो उसने कहा कि पल्ले बांध लिया कि मैं भी अब यही करूँगा इससे। उसके यहाँ कोई मेहमान आए हुए थे, उसके दोस्त पुराने मोअज़्ज़ज़, तो इंतजार कर ही रहा था कि किसी तरह दाढ़ी में कुछ फंसे। तो उसने जो देखा तो उसको ये तो भूल गया था बुलबुल पर शाख गुल निहादे। उसने कहा कि किकरीते कहाँ फंसे है? कीकर जो झाड़दार होता है ना, काफी झाड़ निकालता है, किकरी कहते हैं उसको, उसमें कहाँ फंस गया। और हमारे मुमताज, ये बिच्छू का मियां मुमताज जो है ना, उसने भी गालबन लतीफ़ा सुना हुआ था। तो एक दफा यहाँ वलीमा हो रहा था, कोई और दावत थी, तो कोई चावल मेरे भी यहाँ फंस गया इसी तरह। तो दूर से देखकर बड़े इत्मीनान से आया और मेरे पास आके कहा कि आपकी दाढ़ी में एक बाल फंसा हुआ है। तो ये किसके फंसने से याद आया था ये? हमारे यहाँ बाद बच्चों में ये गोश्त से नफरत पाई जाती है। हमारे खानदान में इनमें भाई मंसूर नजर आला हैं जो, उनके बच्चों में भी बाज में गोश्त से नफरत है। भाई मुनव्वर के बच्चों में से भी बाज में गोश्त की नफरत फिर आगे चली जाती है। तो ये सिल की इलामतों में से एक इलामत है, और ये ट्यूबरकुलिनम इसमें मशहूर है। अगर किसी को गोश्त से नफरत हो ये तो अजनबी बात है, सिवाय इसके कि हिंदू खानदान का हो और वो जहनी तासुरात, वो और बात है। वहाँ जो नफरत है वो तभी बीमारी के नतीजे में नहीं बल्कि नफ्सियाती असरात से होती है। ये नफरत जो है ये आम तौर पर जो इंसानी मिजाज है उसके खिलाफ है। इसलिए यहाँ ट्यूबरकुलिनम से इसका इलाज होना चाहिए। ऊंची ताकत में 1000 10,000 में देके देखें, अगर लाख भी ट्राई कर लें तो हर्ज कोई नहीं, मगर मैं तो 1000 का ही मशवरा दूंगा, पहले 1000 फिर 10,000। इसके पेट की इलामतों में सल्फर से मुशाबे इलामतें पाई जाती हैं। सल्फर भी सिल की चोटी की दवा है
اور ट्यूबरकुलम खुद सिल का मादा है, तो सुबह के वक्त दस्त का जोर, कभी पेचिश, कभी असहाल, कभी कब्ज सख्त किस्म की, बड़े खुश्क स्टूल्स या फिर बहुत नरम हो जाना, ये अमूमन अंतड़ियों के लाइनिंग्स पे फैली हुई बीमारी की इलामत है। मुख्तलिफ शक्लों में वो बीमारी पाई जाती है। हम उसको अंदर से तो नहीं देख सकते, मगर इलामतों से पता चलता है कि अंतड़ियाँ सेहतमंद नहीं हैं। उस सूरत में ट्यूबरकुलिनम भी बहुत अच्छा असर दिखाने वाली है। ड्रम बैली आता है इसके मुतालिक, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ड्रम बैली क्यों बनती है? जिगर फूलता है, तिली फूलती है, और ऐसे बच्चे बाद मलेरिया के मैंने देखे हैं जो लगता है कि सिर्फ अपने पेट के साथ लटके हुए हैं, बाकी सब चीजें, छोटा सा सिर, छोटी छोटी टांगें और पेट बड़ा फूला हुआ और बड़ा सख्त पत्थर की तरह। बहुत ही तकलीफ दे नजारा होता है। लगता है कि ये बच्चे अंदर से सॉलिडिफाई हो गए हैं, उनके अंदर जो पेट के इर्द गिर्द का हिस्सा है अंदर की तरफ वो पत्थर बनकर जम गया है, और उनकी माएँ जो इलामतें बताती हैं वो भी उससे मिलती जुलती हैं, वो पेट पत्थर हो गया है। उसमें ट्यूबरकुलिनम ऊंची ताकत में बहुत मुफीद दवा है। 1000 में ये शुरू करें और फिर उसके बाद सल्फर से ज्यादा कैलकेरिया कार्ब इसमें मुफीद होगी। पहले कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल कर लें, फिर सल्फर से पहले लाइकोपोडियम, फिर सल्फर, क्योंकि ये सल्फर का मुतबादिल है इस पहलू से। जरूरी नहीं कि ट्यूबरकुलिनम देने के बाद फिर सल्फर दी जाए फिर कैलकेरिया दी जाए। ट्यूबरकुलिनम दें, फिर कैलकेरिया दें, फिर लाइकोपोडियम, फिर सल्फर। लाइकोपोडियम और सल्फर और कैलकेरिया का चक्कर यही रहेगा, लेकिन इसमें याद रखना चाहिए कि अगर आपको पता ना चले कि लाइकोपोडियम का वक्त हो गया है कि नहीं, या लाइकोपोडियम सल्फर में तब्दील हुई है कि नहीं, तो उस सूरत में अंदाजन कुछ फासला मुकर्रर करके रूटीन में देना शुरू कर दें। वरना अच्छा माहिर होम्योपैथ वही है जो इलामतों का जाहिर होने का इंतजार करता है और देखता है कि कैलकेरिया कार्ब ने लाइकोपोडियम की इलामतें पैदा की हैं कि नहीं। अगर नहीं की तो जब तक नहीं करती उस वक्त तक कैलकेरिया कार्ब ही रखता है वो। मगर बाज़ दफा दूर बैठे मरीजों के लिए ये करीब से बारीक नजर से देखना मुमकिन नहीं होता। तो ऐसी सूरत में मसलन मैं भी मजबूर हूं, मैं उनको अंदाजा बता देता हूं कि एक हफ्ते के बाद कैलकेरिया कार्ब, सल्फर एक हफ्ते लिया, फिर एक हफ्ते के बाद कैलकेरिया, फिर हफ्ते के बाद बाज़ दफा 15 दिन, बाज़ दफा महीना। बीमारी की नौइयत और पोटेंसी का इख्तियार, ये बातें मिलकर ये फैसला करती हैं कि क्या सही तरीक़ है। मगर अगर मरीज सामने है, आने जाने वाला है, आपके पास वक्त है, तो सबसे अच्छा तरीक़ यही है कि इलामतों को देखें। और इस तरह कई दफ़ा मैं कर चुका हूँ, बहुत अच्छा नतीजा निकलता है। कैलकेरिया कार्ब ने काम किया है, एक जगह जाकर खड़ी हो गई और लाइकोपोडियम की नुमाया इलामतें ज़ाहिर होनी शुरू हुई। उनमें मीठे की गैर मामूली ख्वाहिश एक इलामत है। स्कैपुला में पीछे दर्द हो जाना इस साइड पे, और राइट साइड पे इलामतें गले और दूसरी चीज़ों में, तो उसका जो दाईं तरफ का असर है वो नुमाया असर दिखाने लगता है। उस वक्त लाजिमन लाइकोपोडियम की ज़रूरत है। फिर लाइकोपोडियम कुछ लैकेसिस की तरफ धकेलती है, जरूरी नहीं कि सल्फर की तरफ धकेले, लेकिन इसके बाद लैकेसिस की इलामतों के ऊपर सब्र करके बैठे रहें, सल्फर की इलामतों का इंतजार करें। जब सल्फर की इलामतें ज़ाहिर हो जाएं, वो सुबह की भूख का मिट जाना, 11 बजे के करीब सब सख्त क्रेविंग, और बहुत सी सल्फर की ऐसी इलामतें, हाथ पांव का जलना, सर की चोटी के ऊपर जलन का एहसास, अमूमन गर्मी, रात को बिस्तर में जल्दी अमराज का बढ़ जाना। तो सल्फर अपनी अमूमी इलामात से पहचानना मुश्किल काम नहीं है। ऐसी सूरत में उसका देखें, जब वो इलामतें ज़ाहिर हों फिर उसको ये शुरू करा दें सल्फर, फिर कुछ देर के बाद कैलकेरिया कार्ब, फिर लाइकोपोडियम। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं, ये कोई खुदा का कलाम तो नहीं है कि
3 दवाओं में ही चीज रहे। बाज दफा सल्फर लाइकोपोडियम देने के बाद मरीज इस चक्कर से निकलकर वाकईतन लेकेसिस में दाखिल होता है, और लेकेसिस यानी लेफ्ट साइडेड बीमारियों की अलामतें बड़ी नुमायां तौर पर उभरती हैं जो सल्फर में नहीं होती। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर छोड़ दें इस चक्कर को, फिर लेकेसिस में जाएं। और लेकेसिस की अजीब बात है कि लेकेसिस कुछ अर्सा देने के बाद ये सल्फर मांगती है, और सल्फर लेकेसिस के नतीजे में पैदा होती है। तो ऐसी सूरत में आपका चक्कर जरा बड़ा हो जाएगा। लाइकोपोडियम देंगे, अगर लेकेसिस की अलामतें नुमायां हो जाएं तो लेकेसिस में जाएंगे। और लेकेसिस के मुताबिक अक्सर मेरा तजर्बा यही है कि सल्फर की अगर देते रहें तो सल्फर की अलामतें पैदा करती है। लेकेसिस में हाथ पांव ठंडे होते हैं, सल्फर में गर्म होते हैं, बस ये जब गर्मी पैदा करती है तो सल्फर में धकेलती है। और सल्फर बाज दफा रस्टॉक्स में धकेल देती है, बाज दफा कॉस्टिकम की इलामतें पैदा करती है। तो इलामतें देखकर रास्ता तलाश करना सबसे ज्यादा माकूल तरीक है। ये आपको एक महदूद त्रिकोण के चक्कर में महदूद नहीं रखेगा, बल्कि आपका दायरा जो दवाओं का और उनके इस्तेमाल के सफर का वो ज्यादा वसी कर देता है। लेकिन देख कर चलते हैं, जो भी कर रहे हैं आप देख कर करते हैं। ड्रम बैली का मैंने आपको समझा दिया क्यों ये ड्रम बैली पैदा करती है। आम कमजोरियां इसमें आम पाई जाती हैं, वो तो कोई सिल के मरीज से मुतालिक आप जो ज़हनी तसव्वुर रखते हैं वो कमजोरियां इसमें दिखाई देंगी। मेंसेस इसमें बाज दफा बहुत जल्दी माफ करना, टू प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग, ये इलामतें भी आपको मैंने बहुत सी दवाओं में बताई हैं। बाद में बताया था जल्दी मेंसेस और ज्यादा, बाद में लेट मेंसेस और ज्यादा, बाद में जल्दी और कम, कई किस्म की दवाएं बता चुका हूं। जब आप ये देखते हैं तो इस नोट के साथ उन नोटों की तलाश करें जो पहले आप लिख चुके हैं या लिख चुके हैं, और उनसे मुआवजा करके देखें कि ये इलामतें तो आम औरतों में पाई जाती हैं। कई औरतें बताती हैं कि मेंसेस ज्यादा हैं और जल्दी हो जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, जो पीरियड है उससे आगे वक्त गुजर जाता है। तो ऐसी सूरत में वो दवाएं कौन कौन सी हैं और जहन के लिहाज से उन पर फिर आप इलामतें बांधें कि जब कोई बताएगा तो मैं अंदाजा करूंगा कि ये मोटी औरत है, पतली है, कौन सी आसान इलामतें ऐसी हैं जो जल्दी से पूछूं और जल्द तर असल दवा की तरफ रहनुमाई हो जाए। ये जरूरी होता है इसके नोट्स के मुताले में। अब इसमें जो मेंसेस के अलावा औरतों में जो इलामतें हैं, जैसे मैंने फास्फोरस में भी आपको बताई थी कि ड्रैगिंग डाउन पोजीशन सिचुएशन, जैसे बाहर निकल रहे हैं, आजाद ढीले होकर लटक गए हैं, सुराइनम में भी ये पाई जाती है, फास्फोरस में भी पाई जाती है, और इस दवा में भी बहुत नुमाया है ट्यूबरकुलिनम में। और फास्फोरस खुद ट्यूबरकुलोसिस की चोटी की दवाओं में से है। तो डिस्क्रेजिया यानी वो अंडरलाइंग मेलोडी जो बीमारी पैदा करने वाला मरकज है, वो बसा औकात एक ही होता है और कुछ इलामतें फर्क के साथ जाहिर होती रहती हैं। तो वो दवाएं जिनमें रिलैक्सेशन, नीचे गिरना है, उनका लंग्स की गहरी कमजोरियों से भी ताल्लुक है और ज्यादातर ट्यूबरकुलर बीमारियों से उसका ताल्लुक है। सुराइनम से भी ताल्लुक है, लेकिन इस ज़िमन में मैं आपको बाद में किसी दवा के ज़िमन में ये बताऊंगा कि सोरा और ट्यूबरकुलर और साइकोटिक असरात कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ अलग होते हैं, और इनको पहचान कर एक दूसरे से अलग करना किस हद तक
ज़रूरी है या फ़ायदा मंद है या बेज़रूरत है, छोड़ दे झगड़े को, जो भी साफ इलामतें नज़र आए उसके मुताबिक इलाज करें। ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा किसी वक्त पे उठा रखते हैं। अगर लंबे अरसे तक मुझे याद ना आए तो मुझे बता देना, मगर है ये दिलचस्प मजमून। मसलन मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टरों के जहन में एक सवाल बेदार करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जो बरस है ये सोरिक दवा है, सोरिक दवाओं से ताल्लुक रखती है, एंटीसोरिक दवाएं बरस में काम आएंगी। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि कहीं इसका सिल से तो ताल्लुक नहीं है। सिली अमराज से मेरे नजदीक इसका ज्यादा गहरा ताल्लुक है, और वो मरीज जिनका बेस सिल हो उनमें ये बीमारी भी और इससे मिलती जुलती बाज गहरी बीमारियां पैदा होने के ज्यादा एहतमालात होते हैं। देखने वाली बात है कि ये कहां से निकलती है। ये सुपराड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या नाम है इसका असली? सुप्रारीनल या एड्रिनल। जी। हाँ, सुपरारीनल या एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये कुलाहे गुर्दा है और इसका ताल्लुक गुर्दे के अंदर के हालात से कोई नहीं है। ये गुर्दे की चोटी पर एक ग्लैंड पड़ा हुआ है जो टोपी कहलाती है, उसकी गुर्दे की टोपी, कुलाहे गुर्दा इसीलिए उर्दू में इसको कहते हैं, कुला कहते हैं टोपी है ताज को। तो उसके अंदर अगर बीमारी हो तो वो फिर जो पिगमेंट्स की तकसीम या बराबर की उसका फैलाव बराबर का है उस पर असरअंदाज हो जाती है। और सुप्रारीनल कॉर्टेक्स या एड्रीनल कॉर्टेक्स में मेरे नजदीक बेसिलिनम सबसे अव्वल मुताले का मोहताज है, क्योंकि ट्यूबरकुलर जो बैठने की जगह हैं, उसके अंदाज हैं जो, उनमें एक ऐसी जगह भी है, ग्लैंड्स के अंदर जाके ट्यूबरकुलर मादे बैठ जाते हैं, वहां फिर बद असरात दिखाते रहते हैं। इसलिए ऐसे मरीज जिनमें रोजमर्रा की हमारी टकसाली की दवाएं काम ना करें, उनमें ट्यूबरकुलिनम से भी फायदा उठाना चाहिए। ट्यूबरकुलिनम ऊंची ताकत में दे के देखें, और फिर अगर आपको नुमाया फर्क नजर आए तो फिर मुझे भी बताएं। मैंने तो इसको जल्दी अमराज में जिनका ताल्लुक सोरा से नहीं था, जाहिर मुझे नजर आ रहा था कि फर्क है, और मरीज की इलामतें ट्यूबरकुलोसिस, उनमें इसको बहुत मुफीद देखा है। ट्यूबरकुलोसिस के जो असरात हैं जिल्द पर भी आते हैं, इसलिए वो सोरा से मुशाबे हो जाते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि रिंगवर्म के मुतालिक डॉक्टर बर्नेट ने ये लिखा है कि ये सिली इलामत है, यानी वो ददरी जिसको कहते हैं, वो अगर जाहिर हो तो ये सिली इलामत है। और सिली इलामतों में ट्यूबरकुलिनम के बगैर पूरा काम नहीं होता, और उसने बड़ी कामयाबी से इस बात का तजर्बा किया और दावा किया कि ट्यूबरकुलिनम रिंगवर्म्स को जड़ से उखेड़ने में बहुत मुफीद है। मैंने जो नुस्खा बनाया हुआ है एलोपीशिया का, जिसमें जिल्द के कुछ हिस्से बिल्कुल बाजार बेदाग दिखाई देते हैं, मगर बाल झड़ झड़ के गुच्छे उतर आते हैं वहां से, आम गंजापन नहीं बल्कि पैचेस में गंजापन, उसमें बेसिलिनम मेरे नुस्खे का लाजमी हिस्सा है। दोनों एक ही बात है। मैं बेसिलिनम देता रहा हूं, लेकिन ट्यूबरकुलिनम भी देते हैं, एक ही बात है। तो बेसिलिनम उसका एक लाजमी हिस्सा है और वो काम करती है, जिसका मतलब यह है कि हम उसको एक आम नजर से देखें तो एंटीसोरिक दवा ढूंढेंगे, क्योंकि सोरा है। हालांकि जैसा कि बर्नेट ने भी नोट किया है, मैंने भी अपने तौर पर नोट किया है, सोरा से सिल की मर्ज मिल जाती है, और सिल्ली मर्ज एंटीसोरिक दवाओं को नहीं चाहता बल्कि एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं को चाहता है, और उसमें यह दवा एक चोटी का असर रखने वाली है। नेटरम्योर का भी ताल्लुक है रिंगवर्म से, और जिल्द से भी उसका ताल्लुक है। नेटरम्योर का सर की जिल्द से खसूस ये ताल्लुक है। ऐसा ताल्लुक एक तो खुजली सिर के ऊपर छोटी छोटी हल्की सिकरी वाली खिचड़ी पैदा करता है, लेकिन
उससे ज़्यादा ये कि जो फॉलिकल्स इसको जिनमें जड़ें होती हैं बालों की, उनमें ये बीमारी पैदा कर देता है, कोई कमजोरी, जिससे बाल बेजान और कटे फटे से हो जाते हैं। तो उसको मैं आमतौर पर बेसिलिनम नेट्रोमेट 200 में देता हूँ। क्योंकि ठीक है, और क्या देता हूँ 30 में? इन सब का थोड़ा ध्यान है। और कैसे और ट्यूकर में 2 ही देते हैं, हाँ? ट्यूकर और पिक एसिड 2 ये हाँ, 2 लेकिन बाद में एसिड फॉस भी देता हूँ, लेना ना बाकी सिर्फ 2 ही देता हूँ। लेकिन ट्यूक्रिम क्यों देता हूँ मैं और पिक्रिक एसिड क्यों देता हूँ, आप बताएं होम्योपैथ। ये 2 दवाएं तो पड़ी नहीं थी। हैं? ये 2 दवाएं तो पड़ी नहीं थी। दिन में छुट्टी हुई। विशाल साहब, कीड़ों की वजह से भी हैं? ट्यूक्रिम में कीड़ों की वजह से भी होता है। इन दोनों दवाओं में कहीं जिक्र ही कोई नहीं इस बात का, ना ट्यूक्रियम में ना इसमें पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में। और पिक्रिक एसिड तो मैंने खुद तजर्बों के बाद इजाद की थी, और ट्यूक्रियम मेरी गलती से इजाद हो गई थी, क्योंकि मुझे याद था इससे मिलते जुलते नाम में मैंने रिंग वर्म्स पढ़े हैं, तो थे सॉरी टेलुरियम में थे, और टेलुरियम की बजाय मुझे ट्यूक्रियम याद रहा, और ट्यूक्रियम मैंने देनी शुरू की तो हैरत अंगेज फायदा हुआ। और बाद में मुझे याद आ गया कि ओहो ये टेलुरियम थी, जब टेलुरियम थी तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो बावजूद पूरी दयानतदारी से टेलुरियम के ट्राई करने के, मैंने ट्यूक्रियम को इसमें बदरजहा बेहतर पाया। तो बाज़ दफा हादसात भी आपको अच्छी चीजों की निशानदेही कर देते हैं, वरना मेरे जहन किताबें पढ़ने के नतीजे में किसी सूरत में यहां तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अब तो मैं कतई इस्तेमाल कर चुका हूं, ये हमारे गवाह हैं दोनों डिस्पेंसर बैठे हुए, कि हैरत अंगेज फायदा पहुंचता है लगभग से। लेकिन एसिड फास भी जरूरी है, पिक्रिक एसिड में भी कोई नहीं है। पिक्रिक एसिड तो मैंने उसको मिजाज समझकर सोचकर अंदाजा लगाया था कि ये ऐसी गहरी बीमारियां पैदा कर सकता है, लेकिन एसिड फास में तो मजकूर है ये, यानी बालों का झड़ना और रिंग वर्म वगैरह ये पाया जाता है। मगर ये तो जरूर देनी है बीच में बाहर, बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम। हार्ड ड्राई शेकिंग कॉफ, ये इसकी इलामतों में लिखी हुई है। ऐसी खांसी जो खुश्क हो और सख्त हो, जैसे ढोल बजता हो, और तकलीफ दे हो लेकिन बलगम न पैदा करे। ऐसी दवाइयों में, ऐसी बीमारियों में जो नजलाती हैं, बसा औकात ऐसे मरीज सामने आते हैं, उनका एक इलाज ट्यूबरकुलिनम भी है, मगर तलाश करने चाहिए। आमतौर पर मैं आर्सेनिक और बेलाडोना मिलाकर देता हूं, तो ये खुश्क खांसियों में अमूमन मुफीद है। अगर गहरी कोई मर्ज की निशानदेही हो तो फिर पल्स्टिल्ला देने से खुश्क खांसी गीली खांसी में तब्दील होती है, और वहां स्टेनम मुफीद साबित होता है। तो कई दफा मैंने ये भी देखा कि पल्स्टिल्ला, बेलाडोना, एकोनाइट ये कॉम्बिनेशन बना के दिया है, तो ये भी खुदा के फल से नतीजा खेज हो जाता है। मगर वो जो खांसी है हर वक्त की खुश, उसको बहरहाल तब्दील करना जरूरी है। एक हर वक्त की एक मुसीबत गले पड़ी रहती है, और मालूम ये होता है कि मरज कहीं है जहां तक हमारी पहुंच नहीं रही, पहुंच से आगे निकल चुका है। जब तक वहां पहुंचे ना, उस वक्त तक सही इलाज मुमकिन है। ऐसे मरीज फिर मुस्तकिलन बीमारी रहते हैं, और फिर जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर वो गहरी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। खुश्क खांसी अगर हटेगी कभी खुद ब खुद, तो फिर वो सेल या इस किस्म की दूसरी बीमारियां उसके नीचे से उभरती हैं।
تو خشک کھانسی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور آغاز میں ہلکی سطحی دوائیں دیں. بسا اوقات وہی نشاندہی کر دیتی ہیں. اگر وہ نہ نشاندہی کر سکیں تو پھر یہ میں نے بتایا جیسے بیسیلینم وغیرہ یہ اونچی طاقت دینے سے خود بخود مرض کو کھول دیتی ہیں. جرکنگ آف دا مسلز آن گوئنگ ٹو سلیپ اینڈ ڈیورنگ سلیپ یہ میں نے بہت سی دواؤں میں بتایا نا آپ کو پہلے بھی. ہاں یاد ہے کسی کو؟ تو ایکٹیا میں بتایا تھا کل وہ گوئنگ ٹو سلیپ. ایک گرینڈیلیا بھی بتایا تھا آپ کو. گرینیلیا اور رینانکولس بلبس نیلکلس بلبس تو ویسے ہی جھٹکے گوئنگ ٹو سلیپ میں کے علاوہ بتایا تھا کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے اس میں. اچھا بے ہوشی میں جو طرف اوپر کی ہو وہ جھٹکے لیتی ہے. لیکن نیند میں غوطہ کھاتے ہی کھانسی جھٹکے لگنا اس میں ایک آرسنک بھی ہے مفید. گرینڈیلیا بہت اچھی ہے. اور کل ایک اور دوا بتائی تھی یا پرسوں کون سی تھی؟ یہی رینانکولس تو اس کے علاوہ اسٹیمون بھی ہاں؟ اسٹیمون کیا چیز؟ اسٹیمون اسٹیمونیم نہیں مجھے یاد آ جائے گا میں پھر بتا دوں گا. کیا بتائیں گے؟ ادھر سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں. رینانکولس بلبلس. رینانکولس بلبلس بھی وہ یہی علامتیں بتائی تھی جو میں نے ابھی آپ کو کہ سوتے میں وہ بے ہوشی پیدا ہو جائے مریض کو اور جھٹکے اٹھنے لگتے ہوں اور وہی سائڈ اوپر کی سائڈ والا یہی تو تھا رینانکولس بلبلس. جی لیکن نیند سے ہر وقت کی عام روزمرہ کی نیند سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کے کسی ایسڈ میں غالباً میں نے بتایا تھا مجھے یاد نہیں رہا میں پھر دیکھ کے یاد کرا دوں گا. کیا ممکن ہے میوریٹک مجھے بھی یاد پڑ رہا ہے میں چیک کروں گا. میوریٹک ایسڈ ہی لگتا ہے مجھے. کوئی سوال ہے. ایک خاتون نے پاکستان سے بتایا کہ ان کا آنکھ کا موتیا کا آپریشن ہوا ہے. ہاں لیکن اب ہمیں کل تک انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ 1 منٹ سے زیادہ ہو گیا کہ 1 منٹ کی انگلی اٹھی تھی. ٹھیک ہے اب کل میں 2-3 اور ایسڈ بھی آپ کو پڑھا دوں گا تاکہ ایسڈس کا مضمون اچھی طرح واضح ہو جائے کیا کیا اثرات رکھتے ہیں کن کن داروں میں کیسا ہے. ٹیوبرکلوزس کے بعد ہم بعض ایسڈس کی طرف واپس آئیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. خدا حافظ. کیا ہو گیا؟